چیف جنرل سید عاصم منیر سے تمام مکاتب فکر کے سرکردہ علماء کرام اور مشائخ کی جنرل ہیڈ کوارٹرز میں ملاقات۔ علماء کرام اور مشائخ نے متفقہ طور پر انتہا پسندی، دہشت گردی اور فرقہ واریت کی مذمت کی۔ علماء کرام اور مشائخ نے ملک میں رواداری، امن اور استحکام لانے کے لیے ریاستی اور سیکیورٹی فورسز کی انتھک کوششوں کے لیے اپنی بھرپور حمایت جاری رکھنے کا عزم کا دہرایا ہے۔ علماء کرام کا کہنا تھا، اسلام امن اور ہم آہنگی کا مذہب ہے اور بعض عناصر کی طرف سے مذہب کی مسخ شدہ تشریحات صرف ان کی ذاتی مفادات کے لیے ہیں، جس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آرمی چیف نے انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے ذریعے پھیلائے جانے والے گمراہ کن پروپیگنڈے کے خاتمے کے لیے مذہبی علماء کے فتویٰ پیغام پاکستان کو سراہا۔ آرمی چیف نے کہا کہ بغیر کسی مذہبی، صوبائی، قبائلی، لسانی، نسلی، فرقہ وارانہ یا کسی اور امتیاز کے پاکستان تمام پاکستانیوں کا ہے۔ ریاست کے علاوہ کسی بھی ادارے یا گروہ کی طرف سے طاقت کا استعمال ناقابل قبول ہے۔ وفاقی حکومت اور وزارت دفاع کی جانب سے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی گئی ہیں، جن میں وفاقی حکومت اور وزارت دفاع نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔ وزارت دفاع کی جانب سے دائر درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عالمی تنصیبات پر حملوں کے ملزمان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہ کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا حل صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہے۔ عوامی راج قائم کرنے کے لیے عوام کو الیکشن میں پیپلز پارٹی کو کامیاب کرانا ہوگا۔ پرانے سیاستدانوں کے پاس عوام کے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے۔ آصف زرداری نے جمہوریت بحال کی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ گوادر بندرگاہ مستقبل قریب میں سمندری راستے سے تجارت کا ایک بڑا مرکز ہوگا۔ حکومت گوادر بندرگاہ میں صنعتوں کے قیام اور صنعتی علاقوں سے مواصلاتی روابط کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہر بھر میں کم عمر اور بغیر لائسنس گاڑیاں موٹر سائیکل چلانے والوں کو فوراً گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر روڈ پر 10 لاکھ گاڑیاں ہیں تو 2 لاکھ لوگوں کا لائسنس بنا ہوگا۔ سی ٹی او لاہور نے بتایا کہ 73 لاکھ گاڑیاں روڈ پر چل رہی ہیں، مگر لائسنس صرف 13 لاکھ کے پاس ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ ہم غزہ پر قبضے کا ارادہ نہیں رکھتے اور یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس الشفا ہسپتال میں یرغمالیوں کو رکھے جانے کے ٹھوس شواہد موجود تھے۔ اسرائیلی فوجیوں کے پہنچنے سے پہلے حماس رہنما الشفا ہسپتال سے نکل گئے۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی نے دماغ شاہین افریدی کو کپتان بنوانے کے لیے لابنگ کی باتوں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ شاہد افریدی نے کہا کہ حلفیہ کہتا ہوں کہ کبھی شاہین شاہ افریدی کو کپتان بنانے کے لیے سپورٹ نہیں کی ہے۔ میرے خیال میں T20 کے لیے محمد رضوان مناسب امیدوار تھے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر وہاب ریاض کو قومی کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کمیٹی کا چیف سلیکٹر مقرر کر دیا گیا ہے۔ وہاب ریاض کا پہلا اسائنمنٹ 14 دسمبر سے 7 جنوری تک آسٹریلیا میں ہونے والے 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز اور نیوزی لینڈ میں 12 سے 21 جنوری تک ہونے والی 5 میچوں کی T20 سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کا انتخاب ہوگا۔ قومی ٹیم کے سابق مینٹور اور سابق آسٹریلین بیٹر نے بابر اعظم کو پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی سے ہٹائے جانے کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔
वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी के बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर बाबर आजम को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था और फिर अपने करीबी लोगों के मुशावरत के बाद बाबर आजम ने 2 रोज कबल लाहौर में चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ से मुलाकात के बाद कौमी टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। और पाकिस्तान की मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह ने कौमी T20 टीम के नए कप्तान और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को अहम मशवरा दे दिया। शाहीन शाह की पोस्ट पर जहां शायकीन क्रिकेट की जानिब से तबसरे किए गए तो वहीं टिकटॉकर हरीम शाह हर बार की तरह इस बार भी खामोश न रह सकी। हरीम शाह ने शाहीन अफरीदी की पोस्ट पर तबसरा करते हुए कहा कि दामाद साहब सियासत से ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अहम खबर दे कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से तमाम मकातबे फिक्र के सरकर्दा उलमाए कराम और मुशाइख की जनरल हेडक्वार्टर्स में मुलाकात हुई है। उलमाए कराम और मुशाइख ने मुत्तफिका तौर पर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फिरका वारियत की शदीद अल्फाज में मुसम्मत की है। उलमाए कराम और मुशाइख ने मुल्क में रवादारी, अमन और इस्तेहकाम लाने के लिए रियासती और सिक्योरिटी फोर्सेस की अनथक कोशिशों के लिए अपनी भरपूर हमायत जारी रखने का अज़्म का अयादा किया है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक उलमाए कराम का कहना था कि इस्लाम अमन और हम आहंगी का मजहब है और बाज़ अनासिर की तरफ से मजहब की मसखशुदा तशरीहात सिर्फ उनके साथी मुफादात के लिए है, जिसका इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं है। आर्मी चीफ ने इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के जरिए फैलाए जाने वाले गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए मजहबी उलमा के फतवा पैगाम पाकिस्तान को बेहद सराहा। आर्मी चीफ ने उलमा मुशाइख से गुमराहकुन प्रोपेगेंडे की तशहीर और उसके तदारुक और अंदरूनी इख्तलाफात को दूर करने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने फिक्री और तकनीकी उलूम के साथ साथ कुरान और सुन्नत की तफहीम और किरदार साजी के लिए नौजवानों को रागिब करने में उलमाए कराम के किरदार की निशानदेही भी की। फोरम ने मुत्तफिका तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी, एक दस्तावेजी निज़ाम, पासपोर्ट के निफाज, इंसदाद स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी और बिजली चोरी के खिलाफ इकदाम की भरपूर हिमायत की है। फोरम ने अफगान सरजमीन से पैदा होने वाली दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात की मुकम्मल हमायत की है। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए अफगानिस्तान पर संजीदा इक़दाम करने पर जोर दिया। गजा में जारी जंग और गजा के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मसालिम पर भी गम और गुस्से का इजहार किया है और उन्हें इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दिया है। आर्मी चीफ ने कहा कि बगैर किसी मजहब, सूबाई, कबायली, लसानी, नस्ली, फिरका वराना या किसी और इम्तियाज के पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है। रियासत के अलावा किसी भी इदारे या गिरोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। ठीक है, इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं दिफाई तज्ज़ियाकार से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। सईद अली हमारे साथ इस हवाले से मौजूद है। जी सर, बताइएगा इस हवाले से कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कौन कौन से इक़दाम किए जाने चाहिए, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। ठीक है सर, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी मुझे, बताइए आप सवाल अगर रिपीट कर दें। ठीक है, दफाई तज्ज़ियाकार सैयद अली हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस हवाले से अपडेट कीजिएगा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौन कौन से इकदाम किए जाने चाहिए, इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, आज एक तो बहुत एक इम्पोर्टेंट जो नशिस्त हुई है वो आज GHQ में हुई है,
जिसमें पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र के जो जय्यद उलमा हैं उन्होंने पाकिस्तान फ़ौज की क़यादत और आर्मी चीफ से मुलाकात की है, और उसके 5 पहलू मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूँ जो बहुत अहम हैं। पहली बात यह है कि चूंकि तमाम मकातब फ़िक्र की इस वक्त में नुमाइंदगी थी, तो इसके नतीजे में ये पाक फ़ौज और हमारी रियासत के साथ जो तमाम दीनी उलमा हैं उनके एतमाद का भी ये एक चीज़ मजहर भी है और एक सबूत भी है। दूसरा पहलू ये कि तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने दहशत गर्दी की और इंतहा पसंदी की मजम्मत भी की है, जिससे ये चीज़ साबित होती है कि तमाम मकातब फ़िक्र जो है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो पाक फ़ौज की इस वक्त तमाम जो एफर्ट्स चल रही हैं उनकी भरपूर अंदाज में हिमायत और सपोर्ट भी वो कर रहे हैं। तीसरा पहलू जो है वो ये है कि जो हमारे दुश्मनों की कोशिश है कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के दरमियान गलत फहमियाँ और नफ़रत को फैलाया जाए और इस्लाम को तोड़ मरोड़ के दहशत गर्दी के लिए को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसकी भी तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने मजम्मत भी की और इस बात पे जोर दिया कि जो इस्लाम है वो अमन व आशती और टॉलरेंस का और खैर सगाली का दीन है और उसमें नफरत और इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। और पहलू जो है वो ये है कि इसके नतीजे में कौमी सलामती के हवाले से इस वक्त जो दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज के ऑपरेशन चल रहे हैं उनको एक तरह से एक नजरियाती सपोर्ट भी हासिल हो गई है कि तमाम नजरिए के हामिल जो उलमा कराम हैं और मकातब फ़िक्र हैं वो दहशत गर्दी की यक आवाज़ होके मुखालफत भी कर रहे हैं और पाकिस्तान की रियासत और फौज के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कौमी सलामती के हवाले से ये बहुत अहम नशिस्त थी और जो इसके नतीजे में जो दहशतगर्द और इंतहा पसंद कुव्वतें हैं और हमारे दुश्मन हैं उनको हमारे मुल्क के अंदर जो है अवामी सतह पे और यानी कि माशरती सतह पे भी आइसोलेट करने और कमज़ोर करने में बहुत मदद मिलेगी और मैं समझता हूँ ये एक नज़रियाती एस्पेक्ट से हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त साबित होगी। ठीक है, इस हवाले से सैयद मोहम्मद अली नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे हमें। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से तमाम मकातब फ़िक्र के सरकर्दा उलमाए कराम और मुशाइख की जनरल हेड क्वार्टर्स में मुलाकात हुई। उलमाए कराम और मुशाइख ने मुतफ़िक़ा तौर पर इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फ़िरकावारियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। उलमाए कराम और मुशाइख ने मुल्क में रवादारी, अमन और इस्तेहकाम लाने के लिए रियासती और सिक्योरिटी फोर्सेस की अनथक कोशिशों के लिए अपनी भरपूर हमायत जारी रखने का अज़्म को दोहराया है। इस हवाले से मज़ीद आपको अपडेट करते चलें कि उलमाए कराम का कहना था कि इस्लाम अमन और हम आहंगी का मजहब है और बाज़ अनासिर की तरफ से मजहब की मस्क शुदा तशरीहात सिर्फ उनके ज़ाती मुफादात के लिए हैं जिसका इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं है। आर्मी चीफ ने इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के जरिए फैलाए जाने वाले गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए मजहबी उलमा के फतवा पैगाम पाकिस्तान को बेहद सराहा है। आर्मी चीफ ने उलमाए मुशाइख से गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की तशहीर और उसके तदारुक और अंदरूनी इख्तलाफात को दूर करने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने फिक्री और तकनीकी उलूम के साथ साथ कुरान और सुन्नत की तफहीम और किरदार साजी के लिए नौजवानों को राग़िब करने में उलमाए कराम के किरदार की निशानदेही भी की है। फोरम ने मुतल्लिका तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी, एक दस्तावेजी निज़ाम, पासपोर्ट के निफाज, इंसदाद स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बिजली चोरी के खिलाफ इक़दाम की भरपूर हिमायत की है। फोरम ने अफगान सरजमीन से पैदा होने वाली दहशत गर्दी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात की मुकम्मल हिमायत की। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए अफगानिस्तान पर संजीदा इक़दाम करने पर जोर दिया। गजा में जारी जंग और गजा के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मसालिम पर भी गम गुस्से का इजहार किया और उन्हें इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि बगैर किसी मजहबी, सूबाई, कबायली, लसानी, नस्ली, फिरका वराना या किसी और इम्तियाज के पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है। रियासत के अलावा किसी भी इदारे या गिरोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिले कबूल है।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि विफाकी हुकूमत और वजारत दिफा की जानिब से फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को कलअदम करार दिए जाने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की गई हैं, जिनमें विफाकी हुकूमत और वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। वजारत दिफा की जानिब से दायर दरखास्त में इस्तदा की गई है कि आर्मी तनसीबात पर हमलों के मुलजिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में न करने का फैसला कालअदम करार दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की कालअदम करार दी गई सेक्शन 49(4)B बहाल की जाए। वजारत दिफा ने अपीलों पर हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना की भी इस्तदा कर दी है। अपील में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समात थी। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दिफात कालअदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है कि महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का हल सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है। अवामी राज कायम करने के लिए अवाम को इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को कामयाब कराना होगा। बिलावल भुट्टो सरदारी ने मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि पुराने सियासतदानों के पास अवाम के मसाइल का कोई हल नहीं है। आसिफ जरदारी ने जमहूरियत बहाल की, आमिर मुशर्रफ को भगा दिया, 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड देकर सूबों को बाइख्तियार बनाया है। वहीं दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि गवादर बंदरगाह मुस्तबिल करीब में समुद्री रास्ते से तिजारत का एक बड़ा मरकज होगा। हुकूमत गवादर बंदरगाह में सनतों के क़याम और सनती मुस्तकबिल करीब में समुद्री रास्ते से तिजारत का एक बड़ा मरकज होगा। हुकूमत को गवादर बंदरगाह में सनतों के क़याम और सनती इलाकों से मवासलाती रवाबित की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से गवादर शिपिंग क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन के वफ़द ने खुसूसी मुलाकात की। वफ़द में गवादर शिपिंग क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन के सदर अब्दुल रहीम जफर, सेक्रेटरी जनरल हमीद बलोच शामिल थे। मुलाकात के दौरान वफ़द ने वज़ीर आज़म को दरख्वास्त की कि गवादर बंदरगाह को मुकम्मल फाल बनाने के लिए इब्तदाई तौर पर सरकारी कारकों का कुछ हिस्सा गवादर बंदरगाह से पाकिस्तान दरामद किया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में जिद्दत लाने के लिए कमेटी कायम कर दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी तश्कील दी है, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के अलावा हाई कोर्ट्स और वफाकी शरीयत कोर्ट के जजेस भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के एलामी के मुताबिक नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत अदालती निज़ाम में जिद्दत पर कौमी प्लान मुरतब करेगी। ऑटोमेशन कमेटी अदालती निज़ाम में डिजिटल जिद्दत लाएगी और इंसाफ की बेहतरी के साथ केसेस के तरीकाकार के लिए मोबाइल ऐप जरूर बनाएगी। खबर शामिल करें लाहौर हाई कोर्ट से, जहां शहर भर में कम उम्र और बगैर लाइसेंस गाड़ियां मोटरसाइकिल चलाने वालों को फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर रोड पर 10 लाख गाड़ियां हैं तो 2 लाख लोगों का लाइसेंस बना होगा। सीटीओ लाहौर ने बताया कि 73 लाख गाड़ियां रोड पर चल रही हैं, मगर लाइसेंस सिर्फ 13 लाख के पास है। अदालत ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि ये तो बहुत बड़ा फर्क है। ट्रैफिक पुलिस इस हवाले से क्या कर रही है? इस मौका पर सीटीओ लाहौर ने बताया कि हमने अपने लाइसेंस सेंटर 6 से बढ़ाकर 30 कर दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में डिफेंस कार हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत पर कत्ल की दफा शामिल करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अली ज़िया बादशाह ने कम उम्र मुलजिम अफनान शफकत की दरखास्त पर समाअत की, जिसमें अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आप बताएं, लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना कौन सा जुर्म बनता है?
सानिया 9 मई से मुतल्लिक मुकदमात में नामजद मारूफ फैशन डिजाइनर खदीजा शाह को 30 दिन के लिए नजरें बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने खदीजा शाह की नजर बंदी का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया कि खदीजा शाह को नजरबंद करने का हुक्म SP कैंट और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच की सिफारिश पर जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक खदीजा शाह 9 मई को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में शरीक रही और वो दोबारा अमन और अमान की सूरत हाल खराब कर सकती हैं। और अब कुछ बात स्मॉग से मुतल्लिक तो पंजाब हुकूमत ने बढ़ती हुई स्मॉग के तदारुक के लिए मसनूई बारिश बरसाने का प्लान तैयार कर लिया है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर शहर में स्मॉग के खात्मे के लिए मसनूई बारिश बरसाने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। 28 और 29 नवंबर को मसनूई बारिश के लिए माहिरीन की कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। हुकूमती टेक्निकल कमेटी के मेंबर और पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ जियोग्राफी के डायरेक्टर डॉक्टर मुनव्वर साबिर का कहना है कि मसनूई बारिश पहले से मौजूद बादलों पर नमक छिड़क कर बरसाई जा सकती है। शहर भर में एक बार बारिश बरसाने के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च आएगा। और अब कुछ बात जंगी सूरत हाल की तो इसराइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि हम गजा पर कब्जे का इरादा नहीं रखते और ये हमारा मकसद नहीं है, जबकि हमारे पास अल-शिफा अस्पताल में गैर कमालियों को रखे जाने के ठोस शवाहिद मौजूद थे। इसराइली फौजियों के पहुंचने से पहले हमास रहनुमा अल-शिफा अस्पताल से निकल गए। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि हम गजा पर कब्जे का इरादा नहीं रखते और ये हमारा मकसद नहीं है, कि जबकि हमारे पास अल-शिफा अस्पताल में गैर कमालियों को रखे जाने के ठोस शवाहिद मौजूद थे। इसराइली फौजियों के पहुंचने से पहले हमास रहनुमा अल-शिफा अस्पताल से निकल गए। दूसरी जानिब MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। डायरेक्टर ऑपरेशंस और डायरेक्टर रेवेन्यू की भरपूर शिरकत हुई। एक्वाइफर चार्जेस और सीवरेज चार्जेस जमा न करवाने वालों के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का फैसला कर लिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे कामरान अली। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में तमाम डायरेक्टर्स ऑपरेशंस और डायरेक्टर रेवेन्यू ने शिरकत की। एक्वाफायर चार्जेस व सीवरेज चार्जेस जमा न करवाने वालों के गिरद घेरा तंग करने का फैसला किया गया। MD वासा के अहकामात पर तमाम टाउन्स के अंदर टीमें तश्कील दे दी गई। टाउन्स के ऑपरेशन विंग्स के जरिए एक्वाफायर व सीवरेज चार्जेस जमा न करवाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला किया गया। कमर्शियल सारिफीन, रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स, पेट्रोल पंप्स, होटल, प्लाजे पहले मरले में एक्वाफायर व सीवर चार्जेस जमा न करवाने वालों के कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे। तमाम डायरेक्टर रेवेन्यू अजाफे के हवाले से अपनी सिफारिशात भी पेश करेंगे। गुफरान अहमद का कहना है कि नादहिंदगान के खिलाफ सख्त ऑपरेशन जारी रहेगा। कैमरा टीम के हमरा कामरान अली, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के चेयरमैन आमिर चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कहा PAS से मुल्क में 60% शमसी तवानाई के फरोग के लिए पुरअज़्म है। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के चेयरमैन आमिर चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कहा PAS से मुल्क में 60% शमसी तवानाई के फरोग के लिए पुरअज़्म है। इस इकदाम से पाकिस्तान को सालाना फ्यूल की मद में $1 अरब की बचत होगी। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाइस चेयरमैन जाकिर अली, राना अब्बास, अहमद फवाद फारूक और वकास मूसा भी इस मौका पर मौजूद थे। मजीद कहा कि हम हुकूमत के काबिल तशदीद तवानाई के हालिया इक़दामात के मंसूबों की मुकम्मल हमायत करते हैं। हुकूमत की तरफ से अवामी इमारतों, ट्यूबवेलों और 11 KV फीडरों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली जैसे इक़दामात काबिल तारीफ हैं। नाज़रीन, खबर यह है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर समान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शा तैयार करने वाली वर्कशॉप्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया। मोटरसाइकिल रिक्शों को रजिस्ट्रेशन के लिए 1 माह की मोहलत दे दी गई। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे राना इरफान हैदर। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने हिदायत की है कि गैर कानूनी तौर पर मोटरसाइकिल रिक्शा तैयार करने वाली वर्कशॉप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने ये हिदायत सिविल सेक्रेटेरिएट में आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए की। इजलास में गैर कानूनी तौर पर मोटरसाइकिल रिक्शा तैयार करने वाली वर्कशॉप्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने का फैसला भी किया गया।
चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मोटरसाइकिलों को रिक्शा में तब्दील करना गैर कानूनी है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बगैर तैयार किए गए मोटरसाइकिल रिक्शा माहौलियाती आलूदगी और हादसात का सबब बनते हैं। उन्होंने कहा कि गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल रिक्शों को रजिस्ट्रेशन के लिए 1 माह की मोहलत दी गई है और सिर्फ फिटनेस के मयार पर पूरा उतरने वाले मोटरसाइकिल रिक्शों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि 1 माह बाद किसी गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल रिक्शा को चलने की इजाजत नहीं होगी। चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी सनत को मोटरसाइकिल रिक्शा तैयार करने वाली वर्कशॉप्स की रजिस्ट्रेशन के लिए लायहा अमल तैयार करने से मुतल्लिक हिदायत भी जारी की। महकमा ट्रांसपोर्ट के हुकाम ने इजलास को तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि अब तक 7 कंपनियों को मोटरसाइकिल रिक्शा तैयार करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं, जबकि ज्यादातर मोटरसाइकिल रिक्शा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बगैर मुकामी वर्कशॉप्स में तैयार किए जा रहे हैं। महकमा सनत कानून के सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर, CTO लाहौर और मुतलका अफसरान ने इजलास में शिरकत की। अहलियान शाहदरा के इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। ट्रैफिक मसाइल हल के लिए बनने वाले फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का निगरान वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ मोहम्मद यूनुस से। जी यूनुस, आगाह कीजिएगा इस मंसूबे के हवाले से। बिल्कुल, शाहदरा फ्लाईओवर का जो इफ्तिताह था पंजाब मोहसिन नकवी ने जो आज इसका जो इफ्तिताह कर दिया गया। हमारे साथ जर्नलिस्ट फरोला प्रेस क्लब जिसके की जो प्रेसिडेंट है वो हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं निगरान जो वजीर आला मोहसिन नकवी साहब उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि अहलियान शाहदरा का ये एक दरीना मुतालबा था कि यहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए फ्लाईओवर जो अशद ज़रूरत था, बिल आखिर वो संगे बुनियाद रखने के बाद अपने आखिर मराहिल से होता हुआ आज जो है उसका इफ्तिताह कर दिया है। इससे ना सिर्फ अहलियान इलाका को फायदा होगा, इससे दूसरे जो शहरों से आने वाली ट्रैफिक है उसको भी खासा फायदा होगा और ना सिर्फ शहरी और मुसाफिरों को इसका फायदा होगा बल्कि जो एम्बुलेंसेज हैं जो मरीजों को रेस्क्यू करती हैं उनको भी मरीजों को रेस्क्यू करने में खासी आसानी होगी। और मैं दूसरी जानिब ये बताता चलूं कि ये वो शाहदरा का इलाका था जहां से गुजरते वक्त हमें भी तकरीबन 15 से 20 मिनट का वक्त लगता था, लेकिन अभी फ्लाईओवर बनने के बाद यही जो वो वक्त है 2 से 4 मिनट पे ये हो चुका है कि ये चौक को क्रॉस करने के लिए 2 से 4 मिनट में रोड जो है वो क्रॉस हो सकता है। जी, 2 से 4 मिनट में ये रोड क्रॉस हो सकता है। मेरा कुछ और भी शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। 2 से 4 मिनट रोड ना क्लीयर हो सकता है। ਅੱਗੇ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੰਦਾ शाहदरा मोड़ ना क्रॉस कर लेता है। शुक्रिया। जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी कि शाहदरा के जो फ्लाईओवर वो बनने से ट्रैफिक में काफी बेहतरी आएगी और एम्बुलेंस जो यहाँ पे फंस जाती थी उनको भी रवानी में बेहतरी नजर आएगी। जो बाहर से ट्रैफिक इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू हुई। कहा, फौजी तनसीबात शहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाने वालों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही हो सकता है। जान देने वालों के खून का तकद्दुस जान खाने वालों के हाथों पामाल नहीं होना चाहिए। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक अदालत अपील को वक्त की अहम जरूरत समझकर मंजूर करे और ट्रायल पर जारी हुक्म इम्तना खत्म करे। कसूरवारों को सजा देकर आइंदा के लिए एक मिसाल और हसार कायम किया जा सकता है। उनका मजीद ये भी कहना था कि जो जानबूझकर कानून से टकराए वो किसी रायत का मुस्तहिक नहीं हो सकता। मिलिट्री कोर्ट्स के अलावा सिविल अदालतों में उन मुकदमात की मुनासिब समाअत नहीं हो सकती। नासिर, वहीं दूसरी जानिब चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि हुकूमत कुरान पाक की हुर्मत को यकीनी बनाने के लिए मुस्ताद है। मयारी कुरान पाक की तबात और अशात में कोई तसादुल बर्दाश्त नहीं है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि कुरान पेपर के नाम पर इम्पोर्ट होने वाले कागज को दीगर उमूर के लिए इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। कुरान पाक में तहरीफ जैसी किसी साजिश या मसमूम हरकत को कामयाब नहीं होने देंगे। कुरान पाक की मयारी तबात को यकीनी बनाने के लिए हर नाशिर कुरान पर नई पॉलिसी और शराइत लाजिम व मलजूम है। नाज़रीन, खबर शामिल करें लाहौर से, जहां मुकामी हाल में विंटर फैशन नुमाइश की तकरीब। नुमाइश में एक छत तले 60 से ज्यादा ब्रांड्स के स्टॉल्स लगाए गए। शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए।
لاہور کے مقامی ہال میں ونٹر فیشن ایگزیبیشن کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پرفیکٹ پلان بائی فریحہ کی جانب سے 60 سے زائد برانڈز نے نمائش میں حصہ لیا۔ نمائش میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ موسم سرما کی مناسبت سے مختلف برانڈز نے خواتین کے نت نئے ڈیزائنز کے ملبوسات پیش کیے۔ خواتین آرٹیفیشل جیولری، پینٹنگز، لیڈیز خود سے برائڈل کلیکشن، ملتانی شالز، کرافٹ، سجاوٹی اشیاء، جینٹس ورائٹی، فوڈ سٹالز اشیاء سمیت دیگر ورائٹیز کے سٹال سجائے گئے۔ سر میں ڈاکٹر ادا آصف ہوں فرام ہاؤس آف رینا اینڈ ماشاء اللہ دا ایونٹ واز فنٹاسٹک۔ ہماری سیل بہت اچھی گئی ہے اینڈ وی آر سپر ایکسائٹیڈ کہ ہم نیکسٹ کب ان کے ایونٹ کا پارٹ بنیں گے۔ بہت زبردست قسم کا ایونٹ ہے اور مجھے لگتا ہے ایسے ایونٹس ہونے چاہیے بیکاز ساری چیزیں ایک ہی چھت کے نیچے تھیں اور مجھے تو بہت مزہ آیا شاپنگ کرنے کا، کپڑے، جیولری، جوتے، ایوری تھنگ۔ اور آپ سب کو چاہیے کہ آپ لوگ انکریج کریں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کہ ایسے ایونٹس اٹینڈ کریں تاکہ ایسے ایونٹس اور زیادہ ہوں۔ سارا دن کافی اچھا رہا۔ میرا یہ فلاور ارینجمنٹس کا اسٹال ہے اور میں کافی عرصے سے فلاور ارینجمنٹس کر رہی ہوں، لیکن کمرشلی ابھی کوئی 2-3 مہینے ہوئے میں نے اسٹارٹ کیا ہے کام۔ آپ کو پتہ ہے جو فلاورز ہوتے ہیں وہ انسان کا ایک ایکسپریشن ہوتا ہے، خوشی کے موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو، ہر چیز میں آپ جو اس کو ایکسپلین کرتے ہیں نا اس میں آپ فلاورز کو انکارپوریٹ کرتے ہیں۔ کسی بھی کارنر میں آپ فلاور کو رکھ دیں، سینٹر ٹیبل پہ رکھ دیں تو آپ کو ایک لگتا ہے کہ جیسے روم میں چیز میں ایک لائف سی آ گئی ہے۔ کافی اچھا اسٹال رہا ہے میرا، کافی اچھا مجھے رسپانس ملا ہے۔ میرے پاس ڈفرینٹ پرائزز ہیں۔ مشیز وارڈروب کے نام سے میں اپنے کسٹمرز کو ڈیل کر رہی ہوں۔ میں نے ابھی اپنا برانڈ لانچ کیا ہے مشیز وارڈروب کے نام سے۔ جی میرا نام سدرا ہے اور میں اپنے برانڈ سٹس کٹیور کو یہاں پہ لے کے آئی ہوں اور میں نے ابھی یہاں پہ ویڈنگ کلوز جو میری فیسٹیو کلیکشن ہے وہ میں کر رہی ہوں۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں میرے علاوہ بھی اور یہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے اپنا ورک شوکیس کرنے کے لیے اور میری کلیکشن یہاں پہ بہت زیادہ لوگوں نے پسند کی ہے اور یہاں پہ ہر کوئی جو بھی آ رہا ہے وہ سب لوگوں کو بہت یہاں پہ پروموٹ کر رہا ہے اور یہ ایک اچھا جگہ ہے اپنے کپڑوں کو شوکیس کرنے کی، اپنے فن کو، ٹیلنٹ کو شوکیس کرنے کی۔ فارمل، سیمی فارمل، ویلویٹ کلیکشن، رو سلک مٹیریل جو پیور میں ہوتی ہے زیادہ لائک ہم وہی کرتے ہیں اور کسٹمر کے حساب سے جو بھی جیسے آج کل یہ شالز وغیرہ انڈین کشمیر کی، سری نگر کی یہ بھی شال ہم نے وہ پرووائڈ کی ہے اور یہ ویلویٹ وغیرہ اور اس کی ریشم کی جو شالز وغیرہ ہیں۔ پرفیکٹ پلان بائی فریحہ، اٹ واز ویری نائس اور بہت اچھے برانڈس تھے یہاں پر، 40+ برانڈس تھے اور آسم اور ارینجمنٹس ویری نائس۔ سب سے اچھی بات یہاں پر ہے ہر ٹک ٹاکر نے اپنی ایک کیپیسٹی کے حساب سے یہاں پر چیزیں ارینج کی ہیں اور انہوں نے چیزیں بائی بھی کی ہیں۔ تقریب میں نامور ماڈل نتاشا حسین، سعدیہ فیصل سمیت عام شخصیات نے شرکت کی۔ بہت اچھا لگا مجھے آج یہاں آ کے۔ دیکھیں آج کل کے زمانے میں نہ تو کسی کے پاس ٹائم ہے اور نہ پیشنس ہے کہ آپ اتنی ٹریفک میں ڈیل کریں، تو جب ایک انڈر ون روف آپ کو 60 ڈیزائنرز ملتے ہیں ود دیئر فینٹاسٹک کلیکشنز اینڈ گریٹ پرائسز تو آسان ہو جاتا ہے، آپ کا ٹائم بھی بچتا ہے اور آپ آ کے ہر قسم کی شاپنگ کر سکتے ہیں۔ جولری ہے، جوتے ہیں، لگیج ہے، شالز ہیں، ایوری سنگل تھنگ، اوکے، گھر کی بھی چیزیں، کٹلریز اینڈ ایوری تھنگ۔ سو The perfect plan by Faria has done it all. فیشن ڈیزائنر کلیکشن سٹال شہریوں کی توجہ کا مرکز رہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی نمائش میں مختلف اشیاء کی خریداری بہت آسان ہو جاتی ہے۔ کیمرہ مین شاہین کے ہمراہ جنید اشرف، کوہ نور نیوز، لاہور۔ رپورٹ آپ نے جانے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مرکزی جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے مرکزی جنرل سیکرٹری مفتی احمد علی ثانی کا اجتماع سے خطاب، کہا کہ فلسطینی مسلمان اس وقت ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے عاصم بدر۔ مرکزی جمعیت علماء اسلام نظریاتی پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری مفتی احمد علی ثانی کا جامع مسجد مولانا احمد علی لاہوری میں جمعۃ المبارک کے اجتماع سے خطاب۔ مفتی احمد علی ثانی نے کہا کہ فلسطینی مسلمان اس وقت ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی حمایت کے لیے امریکی صدر جس کے پاس کسی ملک کا دورہ کرنے یا کسی ملک کے حاکم سے ملنے کا وقت نہیں، فرانسیسی وزیر اعظم اور انگلستان کے وزیر اعظم نے اسرائیل کا دورہ کیا اور اسرائیل صدر سے ملاقات کر کے ان کا بھرپور ساتھ دینے کا وعدہ کیا، جبکہ دوسری جانب فلسطینی جو اس وقت شدید بربریت کا شکار ہے، OIC اور مسلم ممالک کی جانب سے ان کی مدد اور حمایت کے لیے فلسطین کا دورہ کیا جائے۔ OIC کا ایک اجلاس بلایا جاتا ہے بجائے اس کے کہ ان کی عملی طور پر کوئی مدد کی جائے۔
सिर्फ एक मजहबी बयान जारी कर दिया जाता है। ना इसराइल से आलमी व कौमी सतह पर तजारती सिलसिला रुकना है, ना ही इनकी मौजूद का बाइकाट किया जा रहा। अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो हम कल रोजे क़यामत अल्लाह और उसके रसूल के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे। नमाज जुमातुल मुबारक के बाद इन्होंने फलस्तीन और हमास के मुजाहिदीन के लिए खसूसी दुआ करवाई। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन फ्रंट के चेयरमैन फहीमुर रहमान सहगल का कहना था कि मियां नवाज शरीफ ताजिरों और कारोबारी हजरात की मुशावरत से मुल्क की मईशत को ठीक रखने का इरादा रखते हैं। हमारे रिपोर्टर अली फारूक उनके हमरा मौजूद हैं। चलिए बताइएगा चेयरमैन प्याफ का क्या कहना है इस हवाले से। जी, मैं मौजूद हूँ प्याफ के चेयरमैन फहीमुर रहमान सहगल के पास और इनकी भी मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, मरियम नवाज साहबा से और जबकि इसाक डार से भी। इनसे तफसीलात पूछते हैं कि क्या विजन लग रहा है आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मियां नवाज शरीफ साहब की जो मुआशी टीम थी अलॉन्ग विद मिस्टर इसाक डार साहब जो हमारे फॉर्मर वज़ीर ख़जाना थे, प्राइम मिनिस्टर हमारे फॉर्मर शहबाज शरीफ साहब और कलसूम नवाज साहिबा, मरियम नवाज साहिबा भी यहाँ तशरीफ़ लाई। तो इन्होंने जो जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी हालात हैं वो बड़े वरीड थे और जो उन्होंने अपना विजन दिया है, हम वही बातें जो हम लाहौर चैम्बर की रिकमेंडेशन थी, एग्रीकल्चर पे बात हुई, आईटी पे बात हुई और स्पेशली इन्होंने डॉलर को, हमने कहा यहाँ पे डॉलर की जो फ्लक्चुएशन है सडनली ये अप चला जाता है, कभी डाउन हो जाता है, तो इसको कहीं ना कहीं स्टेबल ज़रूर होना चाहिए। इस वक्त हमारा जो इशू है ना पाकिस्तान की इकोनॉमी का, वो स्टेबिलिटी का है। हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, तो कंसिस्टेंसी और पॉलिसीज़ पे भी हमारी बात हुई है। तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा विजन है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं तो हमारी मुल्क की इकानमी को एक अच्छी सिमत में लेके जाएंगे। देखिए जी, आप एक तो RLNG महंगी मिलेगी, एक सुई गैस की बात आप कर रहे हैं, उसके अलावा इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। इतनी महंगे टैरिफ के बावजूद आपके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास रिसोर्सेज होने के बावजूद मैं ये समझता हूँ ये सारा इशू मिसमैनेजमेंट का है और इस पर भी हमने बड़ी बात की है। हमने ये बात की है कि हमारा जो इदारा था प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसको एक्टिवेट करें, वो मौजूद है लेकिन उसकी वो वर्किंग जो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट का इशू है। तो उस पर बात हुई है, एनर्जी टैरिफ पे बात हुई है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे बात हुई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बात हुई है। तो मेरे ख्याल में सारे इशू जितने भी इस वक्त हम इकोनॉमी में फंसे हुए हैं, एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना है और इररेलेवेंट जो इंपोर्ट है, आपकी नॉन एसेंशियल इंपोर्ट है, उसको कैसे कर्टेल करना है, ये सारे इश्यूज हमने डिस्कस किए हैं। और मुल्क से इस वक्त सबसे बड़ा इन्फ्लेशन, मैं ये समझता हूँ कि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा इशू है, इस पे बात भी हुई है। एनर्जी टैरिफ को कैसे कम लाना है, उन्होंने हमें ज़ाती तौर पे हमारे पूरे हाउस से ये सवाल किया कि हम बिजली के टैरिफ को कैसे कम कर सकते हैं और बड़े यानी सारे हमारे ऑनरेबल मेंबरान ने उस पर मुख्तलिफ किस्म की तजावीज़ दी हैं। तो स्पेशली हमने उन्हें ये कहा है कि जो फूड कम्योडिटी है उसकी इन्फ्लेशन को कम होना चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी की ज़िंदगी इस वक्त जो है काफ़ी मुश्किल हालात से गुजर रही है। बहुत शुक्रिया अपना फ़हीम साहब, इन्होंने वाज़ह किया है कि हमने सबसे पहले यही कहा है कि जो माशे में जो आम जो शहरी हैं उनकी जो माशी मुश्किलात हैं, उनको खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं इस टाइम, और वो कम करने के लिए जो खाने पीने की चीज़ें सस्ती करने के लिए इकदाम किए जाएँ। नाज़रीन, खबर यह है कि माल दो प्लाजा बनाओ स्कीम जोर पकड़ने लगी है। LDA की जानिब से गैर कानूनी तामीरात को गिराने का सिलसिला जारी है। जहां मुबैना रिश्वत वसूल कर ली जाए वहां पार्किंग के लिए जगह मुख्तस ना भी हो तो मायने नहीं रखता। मजीद तफसीलात के मुताबिक जौहर टाउन G1 पर ज़ेर तामीर प्लाजा ताहाल LDA शोबा टाउन प्लानिंग की आंखों से ओझल हो चुका। LDA इंतजामिया ने मुबैना रिश्वत वसूल के बाद गैर कानूनी नक्शा पास कर दिया है। कानून के मुताबिक कमर्शियल सरगर्मियों की तामीर से कबल पार्किंग के लिए जगह छोड़ना लाजिम है। जौहर टाउन G1 मार्केट में इस गैर कानूनी प्लाजे की तामीर ताहाल जारी है। कहना में हवा की बेटी को इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से इंसाफ मिल गया। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। मजीद जान लेते हैं SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की जुबानी। करवा दी। 17 से 18 साल उसकी उम्र है, जो कि कंफर्म हमें नहीं है। हम वी टेक इट एज अ माइनर जो अगवा हो गई है, और हमारे लिए बहुत कंसर्न है कि वो एक बच्ची है, एक जवान बच्ची जो अगवा हो गई है। सो दिस वाज अ प्रायोरिटी केस फॉर अस एज ऑलवेज।
ہم اس کی تلاش شروع کرتے ہیں. اس کے گھر سے آنورڈ CCTV کیمراز دیکھتے ہیں, جہاں جہاں سے اس کا آنا جانا ہو سکتا ہے ممکنات میں سے وہ ہم دیکھتے ہیں. ایک ٹویسٹ ایسا آتا ہے کہ شہر قصور میں وہاں پہ ایک بچی کو دفنا دیا جاتا ہے اور 176 کی کارروائی کر کے اس کو امانتاً دفنا دیتے ہیں. ہمیں اطلاع ملتی ہے, ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا یہ وہ اغوا ہوئی بچی تو نہیں, اور اتفاقاً جو بیسکلی ایک اتفاق بھی ہے اور ایک پولیس کی تفتیش بھی ہے جو اتنی بغور کی جا رہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس بچی کی آئیڈینٹیفیکیشن کراتے ہیں تو وہ کومل ہی نکلتی ہے. ظلم کی انتہا. کومل کی ہمسائی جس کا نام نگینا ہے, وہ اپنے خاوند کے دوست سے بلاول کے ساتھ اس کی دوستی کرواتی ہے, اور وہ اس چیز کی رسپانسبل ہے کہ وہ بلاول کے ساتھ اس کو قصور بھجواتی ہے. بلاول اور اس کے دوست نشے کی حالت میں مقتولہ کومل کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا دیتے ہیں, جس سے مقتولہ کومل کی حالت غیر ہو جاتی ہے. ملزمان مقتولہ کومل کو DHQ اسپتال لے جاتے ہیں جہاں وہ جاں پر نہیں ہوتی. DHQ ہاسپٹل سے بھی ہمیں انفارمیشن ملتی ہے اور وہاں سے ہم لیڈ لیتے ہیں کہ اس بچی کو جس کو دفنایا گیا ہے وہ کون ہے, اور وہاں پہ ہم اس کے آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس کراتے ہیں. اور ان 2 ظالم مجرمان کو, اور جس میں نگینہ اس کی ہمسائی شامل ہے, اس کو بھی پکڑتے ہیں. اور اس طرح یہ مقدمہ ٹریس ہو جاتا ہے جو کہ اغوا سے شروع ہوا اور اس کا انجام یہ نکلا کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی, اس کو قتل کیا گیا, اور یہ مقدمہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے. اور یہ ملزمان جو ٹریس ہوئے ہیں انشاءاللہ قانون کے مطابق ان کو بھی سخت سے سخت سزا دلائی جائے گی. OPG میو ہسپتال میں کرپشن بے نقاب ہونے کے بعد انتظامیہ کا بھرپور ایکشن ہے. AMSOPG کی ناقص کارکردگی, ڈسکاؤنٹ کے اختیارات واپس لے لیے گئے ہیں. بے شمار مریضوں کی شکایات کے بعد ہسپتال کی انتظامیہ کو ایکشن لینا پڑا. 100% ڈسکاؤنٹ کے اختیارات MS میو ہسپتال کے سپرد کر دیے گئے. AMSOPG صرف 30% تک ڈسکاؤنٹ کر سکیں گے. کرپشن بے نقاب ہونے کے بعد ہسپتال انتظامیہ کے اس فیصلے کو شہریوں نے بے حد سراہا اور امید ظاہر کی ہے کہ آئندہ بھی انتظامیہ کرپشن کے خلاف اسی طرح اقدامات جاری رکھے گی. ناظرین, خبر ہے کہ پاک چائنا آؤٹ باؤنڈ ٹریول اینڈ ٹورزم مارکیٹ نمائش میں بھرپور سیاحتی صلاحیت ظاہر کرنے کے لیے تیار ہے. وزیر مملکت برائے سیاحت وسیع شاہ کی قیادت میں پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن 8 نجی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ چائنا آؤٹ باؤنڈ ٹریول اینڈ ٹورزم مارکیٹ بیجنگ میں شریک ہے. مزید تفصیلات کے مطابق چائنا آؤٹ باؤنڈ ٹریول اینڈ ٹورزم مارکیٹ میں پاکستان پویلین کا باضابطہ افتتاح چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے کیا. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے کہا کہ پاک چین دوستی ایک مضبوط اور پائیدار اتحاد ہے جس نے پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی, اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کو مضبوط کیا ہے. PTDC کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے کہا کہ چین پاکستان کے لیے اندرون ملک سیاحوں کی راغب کرنے کے لیے بہت اہم مارکیٹ ہے. حکومت پاکستان اور چین نے 2023 کو پاک چین سیاحت کے تبادلے کا سال قرار دیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پاکستان چائنا آؤٹ باؤنڈ ٹریول اینڈ ٹورزم مارکیٹ نمائش میں بھرپور سیاحتی صلاحیت ظاہر کرنے کے لیے تیار ہے. وزیر مملکت برائے سیاحت وسیع شاہ کی قیادت میں پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن 8 نجی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ چائنا آؤٹ باؤنڈ ٹریول اینڈ ٹورزم مارکیٹ بیجنگ میں شریک ہوئے. وہیں دوسری جانب پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشنز کا 23 نومبر کو فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد میں بچوں کا عظیم الشان غزہ مارچ کا اعلان ہوا. پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشنز کے رہنما افتخار علی حیدر نے کہا کہ 23 نومبر کو تعلیمی اداروں اور مدارس کے ہزاروں بچے فلسطین میں جاری بربریت کے خلاف فیصل مسجد سے ظفر چوک تک عظیم الشان غزہ مارچ کا افتتاح کریں گے. مزید تفصیلات کے مطابق افتخار علی حیدر کا کہنا تھا کہ مارچ میں اسلام آباد کے پرائیویٹ اور سرکاری اسکولوں اور مدارس کے ہزاروں طلبہ اور اساتذہ شریک ہوں گے. اس مارچ میں پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشنز کی تمام تنظیموں کی شرکت کی دعوت دی گئی ہے اور وہ بھرپور انداز میں
गज़ा मार्च में शरीक होंगे। नाज़रीन, अहम खबर आपको दें कि पूरे मुल्क में महकमा बिजली की डिस्कोस में इंसदाद बिजली चोरी और रिकवरी मुहिम में कारकर्दगी के लिहाज से लेस्को आज भी नंबर 1 पर कायम है। बिजली चोरों, डिफॉल्टर्स और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाइयाँ तो अमल में लाई जा चुकी हैं, मगर जिन मेहनत कशों की वजह से लेस्को नंबर 1 पर है, उनके जहनी सुकून और दिली इत्मीनान के लिए हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नजर नहीं आया। फील्ड में हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने के लिए बगैर काम हो रहा है, वो भी बगैर छुट्टी के। फील्ड स्टाफ आज भी खौफजदा और मायूस और परेशान हाल है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद सीनियर रिपोर्टर साजिद काज़मी से। जी साजिद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी कोहिनूर, सीओ लेस्को शाहिद हैदर और सीएसडी लेस्को राय असगर की लीडरशिप में मुल्क भर की डिस्कोस में कारकर्दगी के लिहाज से लेस्को आज भी नंबर 1 पर कायम है। बिजली चोर, डिफाल्टर्स और सहूलतकार जान बचाते नजर आते हैं, क्योंकि चोरों, डिफाल्टर्स और सहूलतकारों के खिलाफ बगैर किसी रियायत के सख्त तरीन कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं, जो काबिल सताइश हैं। याद रहे कि 2 माह में तकरीबन 20 के करीब मीटर रीडर और लाइनमैन, लाइन सुपरिटेंडेंट्स को नौकरी से निकाला जा चुका है और छोटी मोटी अजियतनाक सजाएं अलहदा हैं। लेस्को की नंबर 1 पोजीशन जिन मेहनत कशों की वजह से मुमकिन हुई, उनके ज़हनी सुकून और दिली इत्मीनान के लिए सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल की जानिब से कोई रिलीफ नजर नहीं आया। फील्ड में हिफाजती तदाबीर इख्तियार किए बगैर काम हो रहा है, वो भी बगैर छुट्टी के। फील्ड में सेफ्टी कोड के मतकाजी ALM से सिंगल फेस और 3 फेस मीटर कटवाए जा रहे हैं। लाइन स्टाफ बगैर शूज और ग्लव्स के मुतलका SDO की मौजूदगी में बिजली के सिस्टम से खेलते नजर आते हैं। नई भर्ती और डेली वेजेस को रेगुलर नहीं किया जा रहा। गो के सीओ लेस्को शाहिद हैदर ने इस जानलेवा मुजरिमाना गफलत का सख्त नोटिस ले लिया है, मगर वो स्टाफ जो दिए गए काम के 100% नताइज दे रहे हैं, वो भी अदम तहफ़्फ़ुज़, खौफ, मायूसी और परेशानी का शिकार है। और ये जानी और माली असाब शिकन सूरत हाल ही हमेशा हादसात का मूजब बनती है, जिसका सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल और मिनिस्टर पावर मोहम्मद अली को एहसास या इदराक नहीं है। जी ठीक है, सीनियर रिपोर्टर साजिद काज़मी तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वहीं दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सियासी महाज पर सरगर्म हो चुके हैं। इलेक्शन के हवाले से गठजोड़ के लिए राबिता मुहिम तेज कर दी गई है। जराये के मुताबिक आज मुल्तान का दौरा किया गया और जनूबी पंजाब के इलेक्टेबल्स के हवाले से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सियासी महाज पर सरगर्म हो चुके हैं। इलेक्शन के हवाले से गठजोड़ के लिए राबिता मुहिम तेज कर दी गई है। सराय के मुताबिक आज मुल्तान का दौरा किया गया और जनूबी पंजाब के इलेक्टेबल से इलेक्शन के हवाले से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सियासी महाज पर सरगर्म हो चुके हैं। इलेक्शन के हवाले से गठजोड़ के लिए राबिता मुहिम तेज कर दी है। सराय के मुताबिक आज मुल्तान का दौरा किया गया और जनूबी पंजाब के इलेक्टेबल से इलेक्शन के हवाले से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ सोनिया मलिक से। जी सोनिया, बताइएगा, इलेक्शन मुहिम जो है इस हवाले से तेज कर दी गई है पीपल्स पार्टी की जानिब से, इस पर अपडेट कीजिएगा। जी, जैसा कि फरवरी में इलेक्शन है, इस हवाले से तमाम सियासी जमातें अब इलेक्शन के हवाले से मुतहरिक नजर आ रही हैं। मगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो ज़राए के मुताबिक इलेक्शन के हवाले से राब्ता मुहिम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब मैदान में निकल पड़ी है। और ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह और पाकिस्तान के साबिका सदर आसिफ जरदारी की गठजोड़ के लिए आज मुल्तान का खुफिया दौरा भी किया गया है। और ज़राए के मुताबिक
मुताबिक ये भी बताया गया है कि जनूबी पंजाब के इलेक्टेबल से भी मुलाकातें भी उनकी मुतवक्के हैं और इसके अलावा ज़राए के मुताबिक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ जरदारी के कुछ दिनों में गैर मुल्क के दौरे भी मुतवक्के हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की KPK में अवामी राब्ता मुहिम जो है वो अभी जारी है और 22 नवंबर तक वो जो राब्ता मुहिम है वो जारी रहेगी, जिसमें वो KPK के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनका दौरा भी करेंगे। जी ठीक है सोनिया मलिक, तमाम तर तफसीलात से आप अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ दीगर खबरें शामिल करें खेल के मैदान से तो कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की फलस्तीन के हक में एक जैसी पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। अब कौमी बैटर की जानिब से सोशल मीडिया पर फलस्तीन के हक में एक पोस्ट शेयर की गई है जिसमें एक बच्ची मलबे पर बैठी है और उसके हाथ में फलस्तीन का झंडा जबकि गोद में खिलौना है। वहीं दूसरी जानिब बाबर आजम ने भी ये तस्वीर शेयर करने के साथ कैप्शन में एक शेर भी तहरीर किया। याद रहे कि मोहम्मद रिजवान ने वर्ल्ड कप के दौरान भी फलस्तीन के हक में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की थी। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज हेड कोच और बैटिंग कोच की जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। PCB सराय के मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम के लिए कोई अलग से हेड कोच या बैटिंग कोच नहीं बनाया जाएगा। मोहम्मद हफीज डायरेक्टर की हैसियत से ही सब कुछ देखेंगे। वहीं दूसरी जानिब कौमी टीम के साबिक मेंटोर और साबिक ऑस्ट्रेलियन बैटर मैथ्यू हेडन ने बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी से हटाए जाने के फैसले पर मायूसी का इजहार किया है। वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी के बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर बाबर आजम को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था और फिर अपने करीबी लोगों की मुशावरत के बाद बाबर आजम ने 2 रोज कबल लाहौर में चेयरमैन PCB ज़का अशरफ से मुलाकात के बाद कौमी टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। वहीं दूसरी जानिब आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर वहाब रियाज को कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी का चीफ सिलेक्टर मुकर्रर कर दिया गया है। वहाब रियाज का पहला असाइनमेंट 14 दिसंबर से 7 जनवरी तक ऑस्ट्रेलिया में होने वाली 3 टेस्ट मैचों की सीरीज और न्यूजीलैंड में 12 से 21 जनवरी तक होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम का इंतखाब होगा। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने दमाद शाहीन अफरीदी को कप्तान बनवाने के लिए लॉबिंग की बातों को बेबुनियाद करार दे दिया। शाहिद अफरीदी ने कहा कि हल्फिया कहता हूं कि कभी शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाने के लिए सपोर्ट नहीं की है। मेरे ख्याल में T20 के लिए मोहम्मद रिजवान मुनासिब उम्मीदवार थे। उन्होंने मजीद कहा कि मेरा और शाहीन का जो रिश्ता है उससे लोग समझेंगे कि शाहिद सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ खबरें शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया से तो पाकिस्तान की मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह ने कौमी T20 टीम के नए कप्तान और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को अहम मशवरा दे दिया है। कौमी T20 टीम का कप्तान बनने पर शाहीन शाह अफरीदी ने अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए समाजी राब्ते की वेबसाइट X का रुख कर लिया, जहां उन्होंने शायकीन क्रिकेट के लिए एक पोस्ट जारी की। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि मैं अपनी कौमी T20 टीम की क़यादत करने के लिए पुरजोश हूँ। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और शायकीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। इस पोस्ट पर जहां शायकीन क्रिकेट की जानिब से तबसरे किए गए तो वहीं टिकटॉकर हरीम शाह हर बार की तरह इस बार भी खामोश न रह सकी। हरीम शाह ने शाहीन शाह अफरीदी की पोस्ट पर तबसरा करते हुए कहा कि दामाद साहब सियासत से ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दे। मॉडल, मेजबान और अदाकारा अनुशे अशरफ का कहना है कि ज्यादातर पाकिस्तानी मर्द हजरात की सोच न सिर्फ दकियानूसी होती है बल्कि उनकी सोच तासुब और जिन्स परस्ती से भरी हुई होती है। अनुशे अशरफ ने भारतीय फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता की जानिब से साबिक कप्तानी क्रिकेटर रमीज राजा के तासुब पर मबनी बयान पर की गई पोस्ट के स्क्रीन शॉट पर कमेंट्स करते हुए ज्यादातर पाकिस्तानियों की सोच को फरसूदा करार दे दिया है। मासी की मकबूल अदाकारा और गुलकारा शाहिदा मुनी ने दावा किया कि उनकी उम्र अभी 50 साल भी नहीं हुई, जबकि औरत 30 साल के बाद जवान और 50 साल के बाद मजीद जवान होती है।
मलका तरन्नुम नूरजहां उनकी वालदा की तरह थी, वो उन्हीं बेटे समझकर समझाती और प्यार करती थी। अदाकारा का मजीद कहना था कि उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने इंतहाई कम उम्र में अदाकारी शुरू की थी। वहीं दूसरी जाने पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा रुबीना अशरफ ने शादी के बाद लड़कियों को इब्तदाई बरसों में शोहर और ससुराल वालों को वक्त देने का मशवरा दिया है। लड़की को शादी के इब्तदाई बरसों 4 चीजों पर तवज्जो देनी जरूरी है। मैं हर लड़की को मशवरा देती हूँ कि शादी के शुरू के 10 साल सरमायाकारी के हैं। इस दौरान हर लड़की के लिए घर, ससुराल, मियाँ और आपका बच्चा अहम कामों से सबसे ज्यादा पहली तरजीह पर होना चाहिए। नासिर खबर यह है कि बॉलीवुड के सीनियर अदाकार नाना पाटेकर कई बरसों बाद एक बार फिर तनाज़े का शिकार हो गए। हाल ही में नाना पाटेकर की फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई थी, जिसमें उन्हें सेल्फी लेने की गर्ज से पास आए मदाह लड़के को थप्पड़ मारते देखा गया था। अब नाना पाटेकर ने मदाह से हाथ जोड़कर मुआफी तलब कर ली है। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।